ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 वर्स नंबर 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। सभी श्लोक पढ़ने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके घर से डिस्टरबेंस आ रही है। श्लोक पढ़ने का ट्राई करिए। श्री भगवान उवाच भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच वाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। प्लीज़ इंग्लिश में पढ़िए ट्रांसलेशन और परपट। जी प्रभु। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious to me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." Purport: as a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if
topics regarding the Supreme Godhead and discussed amongst devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculation of academic scholar, for for it is realized knowledge. The devotee are constantly engaged in the Supreme Lord services. The Lord understand the mentality and sincerity of the particular living entity who is engaged in Krishna consciousness, and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and try to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher elevation in his potent service, described in the ninth chapter matters more confidential than any he has already disclosed. The very beginning of the Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book, and the second and the third chapter, the spiritual knowledge, describe the called confidential. The spiritual knowledge described is called confidential. Topic discussed in the seventh and the eighth chapter are specially related to devotional service, and because they are enlightened, and because they are the topic discussed in seventh and eighth chapter is specially related to devotional services, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matter which are described in the ninth chapter deal with unalloyed pure devotion. Therefore, this is called the most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge in Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material ends, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving services to the Supreme Lord is situated in the confidential state of material existence, he is to he is to be considered liberated. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. Now, in the first verse, he has specific significance. The word idam jnanam, this knowledge, refers to the pure devotional services, which consist of nine different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of this nine element of devotional services, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand this science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of the spiritual realization, but one should recognize the difference between the activities of body and the spiritual activities of one who understand. प्रभु जी थोड़ा वेट करेंगे, वो जो हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है ना, उसका विसर्जन के लिए जा रहा है, तो बहुत ही शोर हो रहा है, तो 1 मिनट आप होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे का हरेंद्र प्रभु आप पढ़िए आगे का। जी प्रभु जी। प्रभु जी हिंदी में पढ़ना है? इंग्लिश में, इंग्लिश। ये नाउ द फर्स्ट वर्स से। इन द 7th चैप्टर। ठीक है प्रभु, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं प्रभु जी, ठीक। अभी शोर खत्म हो गया, इसलिए मैं पढ़ने को बोला। ठीक है, आप पढ़िए। When one heart is thus cleared in the material contamination, one can understand the science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. There may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his deterrent energies, his different energies, the inferior and the superior nature. And all this material manifestation
all this material manifestation. Now, in the chapter 9, the glories of the Lord will be delineated. The Sanskrit word anasuyava in the verse is also very significant. Generally, the contaminator, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholar writes in Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. The contemporaries are useless. The contemporaries given by devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So such contemporaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, this chapter will be very beneficial. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय शिला प्रभुपाद. थैंक यू प्रभु जी. और प्रभु जी सॉरी है, मुझे थोड़ा रुकना पड़ा था. हरे कृष्णा जी, कोई बात नहीं। जय श्रील प्रभुपाद। हम हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 1। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालहीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उससे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। किंतु अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय अध्याय तथा तृतीय अध्याय में जिस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गूढ़ा कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वह भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुहतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुढ़ा कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए इसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसमर सिंधु में कहा गया कि जिसने भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्या तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य
आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना मर्द तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल ये जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो ये जानता है कि ये शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सूत्र विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वह कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं एकादशी के दिन। और इस अध्याय में जो इस अध्याय का शीर्षक है ये है परम गुह्य ज्ञान। और परम गुह्य ज्ञान के बारे में जो विवेचना भगवान ने की है और शिला प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये श्लोक कई बार इसको अपने प्रचार में, अपने लेक्चर्स में बार बार बोला है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी जब भी कोई श्लोक एक्सप्लेन करते हैं तो केवल उसको केवल ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसका जो सबसे आंतरिक अर्थ होता है, उसका जो डीप मीनिंग होता है, जिसको हम पहली बार में समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उसको, ताकि हम और गहराई से समझ पाए। और इसलिए उनकी जो कमेंट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये जो लेक्चर है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने ये श्लोक का वर्णन किया है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है, इसको संचालित करने वाले और इसके जो कंट्रोल करने वाले हैं, इसके पीछे जो शक्ति है, जो बुद्धि है, वो भगवान की है। और हालांकि ये स्टेटमेंट सुनने में और बोलने में बड़ा आसान लगता है कि भगवान हर चीज़ का मालिक है और भगवान हर चीज़ का नियंत्रण करते हैं, पर इसको ठीक तरह समझ पाना और ठीक तरह उस ज्ञान का अपने जीवन में उसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोग ये जो एक स्टेटमेंट है कि भगवान हर वस्तु के मालिक है और भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर इसको व्यवहारिक रूप से अनुभव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये विचार रहता है कि
जो भी मैं देखता हूँ और जो भी मेरे आसपास है, मैं उसका नियंत्रक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, और ये सब कुछ मेरे भोग के लिए है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, ये जो चेतना है, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है। और ये ज्ञान इसीलिए हमको दिया जा रहा है बार बार, ताकि हम उस चेतना को बदल सके। अब चेतना हमारी इस तरह की है कि जो कुछ मैं देखता हूँ और जो कुछ मेरे आसपास है वो मेरे नियंत्रण में है, मैं उसका मालिक हूँ। और एक तो ये चेतना है कि मैं मालिक हूँ, मैं नियंत्रक हूँ। दूसरी चेतना है कि क्योंकि मैं मालिक हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, तो मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसको नियंत्रित करता हूँ, मैं इसको भोग करता हूँ, और ये मेरे लाभ के लिए, मेरे आनंद के लिए ये वस्तु है। तो ये जो चेतना है ये बहुत ही हमारे अंदर तक है, मतलब बहुत जन्मों तक, बहुत जन्मों से, और इस जन्म में भी हमेशा हमारे मन में यही विचार आते रहते हैं कि हम इस संसार में जो कुछ हम देखते हैं या जो कुछ हमारे आसपास है, हम उसके भोक्ता हैं, हम उसके एंजॉयर हैं। और इसीलिए एक शब्द आता है उपभोक्ता। तो हर व्यक्ति अपने आप को उपभोक्ता मानता है, और इसीलिए हमारे समाज में हर वस्तु उपभोक्ता के अनुसार बनाई जाती है। पर असली उपभोक्ता हम नहीं हैं, असली उपभोक्ता भगवान है। तो हमारा और भगवान का संबंध क्या है, हम कौन हैं और भगवान कौन है, ये ज्ञान बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, और इस ज्ञान को हमेशा याद रखना चाहिए। और उसी के अनुसार ये ज्ञान हमको प्रभुपाद ने दिया है, ये जीवन जीने का जो तरीका हमको दिया गया है, ये इसी सिद्धांत के अनुसार दिया गया है कि भगवान मालिक है और हम लोग सेवक हैं। उपभोक्ता भगवान है, हम लोग सेवक हैं। तो जब मालिक भोग कर लेता है तो फिर सेवक उसके बाद प्रसाद के रूप में भोग करता है। उसी तरह से हम लोग भगवान को भोग अर्पित करते हैं, और भगवान को भोग अर्पित करके फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत ही सरल विधि है, बट बहुत ही इसका गहरा मतलब है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से हम उसी चेतना में चले जाते हैं कि मैं भोगता हूँ और मैं मालिक हूँ। और ये बहुत ही सूक्ष्म होता है कि ये चेतना बदलने में समय नहीं लगता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ये श्लोक बार बार बोलते हैं, अलग अलग लेक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग लेक्चर में, अलग अलग समय पे यही श्लोक प्रभुपाद जी ने बताया। और इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, गुह्यतमम अनसूयवे। गुह्यतमम मतलब ये बहुत सीक्रेट है, बहुत बड़ा ये रहस्य है। और अनसूयवे मतलब कि ये अर्जुन को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो ईर्ष्या नहीं करता भगवान से। तो ये दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान भी है इसमें और विज्ञान भी है। तो केवल ये बोलने की बातें नहीं हैं, ये करने वाली बातें हैं, सिर्फ पढ़ने वाली बात नहीं है, इसको जीवन में हमें उतारना भी है। तो जैसे हम लोग सबने पढ़ा है कि भगवान मालिक है, पर हम में से कितने लोग अपने घर को और अपनी दुकान को भगवान के नाम पे रखते हैं और भगवान को उसका मालिक मानते हैं। ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि भगवान मालिक है, पर क्या मैंने अपने घर को भगवान के नाम किया है या नहीं किया है? क्या मेरा घर और मेरी दुकान और मेरी गाड़ी और मेरी जो भी संपत्ति है, क्या वो भगवान की सेवा के लिए है या मेरे खुद की सेवा के लिए? ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाता है क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि क्यों भगवान हर चीज़ का मालिक है, मैं भी तो मालिक बन सकता हूँ। अगर ठीक है भगवान पूरी दुनिया के मालिक होंगे, बट कम से कम ये घर का मालिक मैं हूँ। पर ये घर भी दुनिया के अंदर ही आता है, ये घर कोई दुनिया के बाहर नहीं है। तो अगर मेरा घर है या एक कमरा है या एक मेरी दुकान है या एक गाड़ी है, ये भी दुनिया के अंदर ही आती है। और मेरा शरीर भी जो है वो भी भगवान का है। तो चाहे कोई भी वस्तु हो या कोई भी, हमारा खुद का शरीर भी क्यों ना हो,
मेरा खुद का मन भी और मेरा बुद्धि भी भगवान का ही दिया हुआ है, और मेरी आत्मा भी भगवान का अंश। तो ये भगवत गीता में भगवान ने कई बार बताया है, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। एक जगह पे भगवान ने बोला है कि सारे मेरे अंश हैं, और दूसरी जगह पे भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं ही पिता हूँ, मैं ही बीज देता हूँ हर एक जीव का, तभी उसका जन्म और उसका जीवन संभव होता है। तो भगवान ने अलग अलग तरीके से ये सत्य उजागर किया है गीता में कि वो बीज देने वाले पिता है, हम लोग अंश है, और हम भगवान का अंश होने के नाते मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, और इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ मेरे पास है, घर है, परिवार है, देश है, समाज है, मानवता है, धरती है, पूरा ब्रह्मांड है, तो सब कुछ शुरू होता है भगवान से, और भगवान ही उसका उद्देश्य है। भगवान ही मालिक है, भगवान ने ही बनाया है, और भगवान की ही सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो ये ज्ञान है, और ये विज्ञान, प्रभुपाद जी ने विज्ञान भी बताया है कि इसको कैसे करना है। अब ज्ञान तो ये सबको है, आप राह चलते या किसी भी बड़े आदमी या छोटे आदमी को आप पूछोगे ये ज्ञान बताओगे तो करेगा हाँ हमको पता है भगवान मालिक है। सभी बोलते हैं हाँ हमको पता है भगवान मालिक है। पर अगर आप उनसे पूछोगे ठीक है भगवान मालिक है, तो फिर आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हो उसको। ये जो वाक्य है भगवान मालिक है, कि आपने अपना सब कुछ भगवान के नाम पे कर दिया है, कि आपने अपना समय, अपना शरीर, अपना मन, अपने विचार, अपने कर्म, अपना सब कुछ क्या आपने भगवान के नाम कर दिया है। अब ये प्रश्न जब पूछते हैं तो वो भाग जाते हैं तुरंत, कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम बाद में मिलेंगे, या फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे, ऐसा बोल के वो हमसे अलग हो जाते हैं। तो ये विज्ञान की बात है। जैसे ज्ञान की बात करते हैं तो सभी कहते हैं हमें पता है, हमको पता है, हमने पढ़ा है, हमने गीता देखी है, हमने महाभारत देखी है, हमने गीता पढ़ी है, हमको पता है कृष्ण भगवान है, कृष्णा मालिक है। तो पता होने को तो सबको पता है, जो बड़े महल में बैठा है या बड़ी ऑफिस में बैठा है या जो सड़क पे भीख मांग रहा है, सबको पता है कि भगवान है, भगवान मालिक है। भीख मांगने वाला भी भगवान के नाम पे ही भीख मांगता है कि अल्लाह के नाम से या भगवान के नाम से दे दे। और जो बड़ा मालिक है, ऊपर राज कर रहा है या तो बड़े सिंहासन पे बैठा है या बड़ी ऑफिस में बैठा है, उसको भी पता है कि भगवान ने बिठाया वहाँ पे, तो वो भी कहता है हाँ जी हम मानते हैं भगवान ने बिठाया मुझको। तो एक भिखारी से लेके ऊपर बैठने वाले तक सबको पता है कि भगवान ही मालिक है। पर जब बात आती है कि अब इस ज्ञान को मिलने के बाद तुम क्या कर रहे हो, तब असली परीक्षा शुरू होती है, और तब सब लोग भाग जाते हैं। तो जो भिखारी है वो भी भीख मांगता है भगवान के नाम से, पर फिर वो भगवान की सेवा नहीं करता। वो भीख मांग लेगा, वो 10 रुपये 20 रुपये, दिन भर में 1000 रुपये ले लेगा उन लोगों से भीख मांग के कि अब भगवान के नाम पे मुझको दे दे। अब भगवान के नाम पे दे दिया है तो फिर भाई भगवान के नाम पे इस्तेमाल करो उसे। फिर नहीं, पर वो जाएगा शराब पिएगा, वो फिर अपने शरीर का भोग करेगा। तो भगवान के नाम से मांगेगा बट सेवा अपने शरीर की करेगा, भगवान की नहीं करेगा। और उसको पता भी है कि अगर भगवान की सेवा की तो मुझे भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अगर भगवान की सेवा की तो भीख क्यों मांगूंगा मैं, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा। पर वो भगवान के नाम से 10 रुपये लेगा आपसे, पर फिर उसका भोग करेगा वो। और जो 10 करोड़ का मालिक है, जो ऑफिस में बैठा है, गाड़ी में घूम रहा है, बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी है उसके पास 10 करोड़ का बंगला है, उसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, उसके पास सूट है लाखों रुपए का, घड़ी भी लाखों रुपए की पहनता है वो, और सब कुछ महंगी चीज़ें हैं उसके पास। उसको भी पता है कि ये सब भगवान ने दिया है उसको भी। अगर जैसे हम लोग कई बार प्रचार करने जाते हैं तो कभी कभी गरीब लोग भी मिलते हैं, कभी कभी अमीर लोग भी मिलते हैं, उनको हम ये बताते हैं कि भगवान मालिक है, ये भगवत गीता में लिखा है भगवान मालिक है। तो सभी बोलते हैं हाँ, भिखारी से लेकर सब बोलते हैं कि हाँ भगवान मालिक। फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है भगवान मालिक है, चलो अब चलिए भगवान की सेवा हम करेंगे, आप आइए हमारे साथ, भगवान की सेवा करेंगे। जैसे ही हम बोलते हैं कि भगवान की सेवा करेंगे तो वो भाग जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो भीख मांगनी है, मेरे पास टाइम नहीं है,
मेरे को भगवान के नाम से भीख मांगनी है, मेरे पास टाइम नहीं है सेवा करने के लिए, वो चला जाएगा, भीख मांगेगा वो। और जो सूट बूट में 1 करोड़ की गाड़ी में और बड़ी ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठा आदमी है, उसको भी आप बोलोगे कि ठीक है आप मानते हो भगवान ने सब कुछ दिया है, चलो आप भगवान की सेवा करो। अपनी ऑफिस में आप सबको गीता बांटो और सभी हरे कृष्णा बोलो और सभी लोग भगवान की सेवा करेंगे, तो तुरंत वो भाग जाएगा, कहेगा नहीं नहीं मेरी मीटिंग है, मेरे को कुछ लोगों से मिलना है, बड़ी बिजनेस डील है, वहाँ पे मुझे जाना है, हम नहीं आ सकते भगवान की सेवा करने। तो मतलब कि सड़क पे भिखारी से लेके जो बड़ा सेठ बैठा है या कोई बड़ा मंत्री बैठा है या कोई बड़ा राजा बैठा है ऊपर, सड़क के भिखारी से लेके वहाँ तक सभी लोग चोर हैं, ये स्पष्ट। क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि भगवान ही मालिक है, भगवान ने ही सब कुछ दिया है, और भिखारी से लेके ऊपर बैठने वाले तक भगवान के नाम से ही कर रहे हैं, बट वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे। वो सब कुछ ले लेंगे, वो पैसा इकट्ठा कर लेंगे, अपने बड़ा बंगलो बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे वो, पर भगवान की सेवा के लिए समय नहीं है। तब वो बोलते हैं कि हमें कर्म करना है, पर कर्म करने की शक्ति किसने दी, कर्म करने के साधन किसने दिया, शरीर किसने दिया, कर्म करने के लिए बुद्धि किसने दी, शरीर की इंद्रियां किसने दी जिससे आप कर्म करते हो, वो सब भगवान ने दिया। सबका मालिक भगवान है, बट उनकी सेवा नहीं करनी है। तो इसी को कहते हैं माया। माया का मतलब है कि आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ सच्चाई आंखों के सामने क्लियर है, पर उसको जानते भी है पर मानते नहीं है। सब लोग जानते हैं, गीता में जो लिखा है, गीता में जो भगवान ने बोला है सत्य क्या है, सब लोग जानते हैं पर मानते नहीं। मानने की बात आ जाती है, सेवा करने की बात आ जाती है, तो सब पीछे हट जाते हैं कि नहीं हमको समय नहीं है, हमें बहुत सारे काम हैं। पर वो सारे काम कौन से वाले हैं, भगवान वाले काम नहीं है, वो माया वाले काम। हमारे खुद के स्वार्थ के लिए हमें कुछ करना है, चाहे गवर्नमेंट का हो या समाज का कोई कार्य हो या परिवार का कोई कार्य हो, कोई भी, सब लोग अपने स्वार्थ में लगे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो ज़्यादा बल दिया है विज्ञान, विज्ञान मतलब सेवा, ज्ञान मतलब कि भगवान मालिक है, भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान हर चीज़ के ईश्वर है, हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं भगवान, भगवान ही धर्म के रक्षक हैं, भगवान ने ही धर्म की स्थापना की, ये है ज्ञान। पर विज्ञान का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे ज्ञान विज्ञान सहितम। विज्ञान मतलब सेवा, कि अब मुझे पता है कि भगवान मालिक है, भगवान हर चीज़ का नियंत्रक है, तो फिर मुझे भगवान की सेवा करनी है, और क्या ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, भगवान की सेवा करनी है। तो ये विज्ञान की बात, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। श्रीला प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ते थे, केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे उनको नॉलेज था, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि केमिस्ट्री में एक किताब में इक्वेशन लिखी होती है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के एक एटम बनता है पानी का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बना के मिलता है H2O मतलब पानी। ये ज्ञान है। पर विज्ञान का मतलब क्या है कि आप सचमुच अपने कॉलेज की लेबोरेटरी में जाओ और हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, उसको मिक्स करो, फिर उसका जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें पानी निकलेगा। तो जब आप पानी बनाओगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके, वो विज्ञान, वो आपने करके दिखाया। उसी तरह से भक्ति में और गीता में ये सारा ज्ञान है कि भगवान मालिक है, भगवान हर चीज़ का उपभोक्ता है, भगवान ही ईश्वर है, वही हर चीज़ का नियंत्रण करता है, ये सब ज्ञान है। पर विज्ञान क्या है कि अब मुझे सेवा करनी है भगवान की, और सेवा करके मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, क्योंकि वो मालिक है। सेवक का काम है मालिक को संतुष्ट करना, और मालिक संतुष्ट हो गया तो सेवक का जीवन सफल, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो पहले तो हमको ये जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है कि भगवान मालिक है, मैं सेवक हूँ, यही मेरी स्थिति है। भगवान हमेशा मालिक रहेंगे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, मैं भी सेवक रहूँगा, अभी भी सेवक हूँ, आगे भी सेवक ही रहूँगा। मुझे अपनी सेवा से भगवान को संतुष्ट करना है, ये ज्ञान है।
और फिर उसको प्रैक्टिकली करना भी है। उसके लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया और इतनी बड़ी संस्था बनाई कि यहाँ पे आप आओगे कृष्णा की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। यहाँ पे माया के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, और ये वही कर पाएगा जो अनुसूयोग है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट बताया है कि एक ज्ञान उसी को दिया जाता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। अर्जुन की तरह अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। अर्जुन को एक ज्ञान दिया गया, फिर उसने सेवा भी की भगवान की। उसने युद्ध किया भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान की इच्छा है, भगवान इन दुष्टों को नाश करना चाहते हैं, भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, और मुझे भगवान की सेवा के लिए ये युद्ध करना है। तो अर्जुन के मन में सब क्लियर हो गया कि हाँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो मालिक नहीं हूँ, भगवान मालिक है। पूरी धरती के, पूरी सृष्टि के मालिक भगवान है। वो चाहते हैं कि इन दुष्टों का नाश हो, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं और सृष्टि को भोगने का प्रयास करते हैं। जो जिस सृष्टि का मालिक भगवान है, उस सृष्टि पे ये लोग नियंत्रण करके उसका भोग करना चाहते हैं। तो भगवान उनका नाश करना चाहते हैं कि वो न्याय है, वही धर्म है कि जो भी सृष्टि पे अपना नियंत्रण करना चाहता है और भगवान के सेवा नहीं करना चाहता है, वो दोषी है, वो अपराधी है। और प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते हैं कि गवर्नमेंट होती है तो सबको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स नहीं देता वो अपराधी होता है। उसी तरह से कृष्णा मालिक है और हमें कृष्णा की सेवा करने के लिए बनाया गया है। तो जो भी कृष्णा की सेवा नहीं करेगा वो अपराधी है। तो बहुत सरल ये गीता का सार है जो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि कृष्णा मालिक, हम लोग सेवक, और गुरु हमारा मार्गदर्शक कि कृष्णा की सेवा कैसे करनी है। तो गुरु की सेवा मतलब कृष्णा की सेवा। गुरु का मार्गदर्शन में हमें गुरु की सेवा करनी है, और वो सेवा जाती है कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा की सेवा गुरु करते हैं और हमको सेवा करनी है गुरु की। तो इस तरह से हमको ये ज्ञान को अप्लाई भी करना है। हमें कुछ ना कुछ सेवा करनी है, और बिना सेवा के ये सब व्यर्थ है। अगर हम सिर्फ गीता पढ़ते रहेंगे पर अगर हम गुरु की, प्रभुपाद जी की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कृष्ण कभी संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जिसने ये ज्ञान हमको दिया है उसकी सेवा हमने करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने पूरा प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद जी की हम कुछ ना कुछ सेवा करें। हम उनसे ईर्ष्या ना करें, हम उनकी जगह लेने की कोशिश ना करें। आज के समय में ऐसा बहुत हो रहा है, प्रभुपाद जी से बहुत लोग ईर्ष्या करते हैं और उनकी जगह लेने का ट्राई करते हैं कि अब प्रभुपाद जी नहीं है, हम गुरु हैं। तो ये ईर्ष्या के कारण होता है, वो प्रभुपाद जी की जगह लेना चाहते हैं। तो उसको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, वो उसको ये विज्ञान नहीं समझ में आएगा, वो ये विज्ञान का अपने जीवन में उतार भी नहीं सकता, उसको शांति भी नहीं मिल सकती, उसको मार्ग भी नहीं मिल सकता। जो गुरु से ईर्ष्या करता है और जो गुरु की जगह लेने का कोशिश करता है उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती। सफलता उसको मिलती है जो गुरु की सेवा करने का प्रयास करता है और गुरु की बातों को बिना बदलाव किए आगे दूसरों को बताने का प्रयास करता है, उसी को सफलता मिलती है। तो यही सफलता का राज है कि गुरु की सेवा करो। पहले तो गुरु को पहचानो, श्रील प्रभुपाद गुरु हैं, और उनकी सेवा करो, उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने आदेश दिए उसका पालन करो, और ईर्ष्या मत रखो। ये बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी से तो गलती से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि फिर तो हमारा मार्ग बंद हो जाएगा। सेवा का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर माया हमें घेर लेगी। तो ये सीखना है हमें यहाँ से कि शिला प्रभुपाद जी से ईर्ष्या नहीं करनी है, और जो उन्होंने विज्ञान बताया है सेवा करनी है और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना है, तो फिर हमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन या डाउट किसी को अगर है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी?
हाँ बोलिए। अम, मैं पूछ रही थी कि हम कभी कभी प्रसाद बनाते हैं, वो भी हमारे मन का ही बनाते हैं कि हमको ये खाना है, तो इसमें भी क्या मतलब हमको ये भगवान को भोग लगा के खाना है ये तो पता है, पर मुझे ये मन हो रहा है इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। तो इसमें भी हम भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये जो है भोग लगाते हैं तो ये चीज माइंड से धीरे धीरे मतलब ये पाप नहीं होता है, या फिर ये भी हम भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी को अगर जैसे आज एकादशी है तो हम एकादशी के लिए बना रहे हैं, तो भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं, तो हम वो नहीं बना रहे, हम एकादशी का ही बना रहे हैं, तो ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं। हाँ तो भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं, बट प्रभुपाद ने बोला है कि अगर हमारे पास कैपेसिटी है कुछ अच्छा बनाने की तो अच्छा बनाना चाहिए। भगवान को अच्छी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है, और फिर उसको हम प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो मन में बस ये होना चाहिए कि भगवान को अच्छा खिलाना है, और फिर हम भी वही चीज़ प्रसाद के रूप में अच्छा खा सकते हैं। तो फिर उसमें भोक्ता बनने का नहीं आता है मन में। अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान को अच्छा देना है, भगवान को कुछ ऑर्डिनरी चीज़ नहीं देनी है, अच्छी चीज़ बना के देनी है, तो यूजुअली ये आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में होता है कि मुझे